Hansi, good morning, 7th class. As you all know, we have completed chapter respiration in organisms. Today we are going to discuss the exercise of the same chapter. Firstly, let's say very short question answers. First question is, why do we require oxygen? Why do we require oxygen? What is the need of the oxygen? Oxygen is required for the oxidation of the food, for the breaking of the food, for the oxidation of the food. We require oxygen for the oxidation of food. Second question क्या है? Mention the end products of the respiration. What are the end products of the respiration? Energy, water and carbon dioxide. These are the end products of respiration. First क्या है? Energy, second water and the third one is carbon dioxide. Third question is, why do we sneeze when we inhale dust laden air? जब हम dust से fill air क्या inhale करते हैं, why we sneeze? Sneezing through the dust particles from the air inhaled. क्योंकि जो स्नीजिंग है हमारी वो क्या है, जो डस्ट पार्टिकल दैट वी इनहेल, स्नीजिंग थ्रोज आउट देम, स्नीजिंग थ्रोज आउट डस्ट पार्टिकल्स, दैट्स व्हाई वी स्नीज व्हेनेवर वी इनहेल डस्ट पार्टिकल इन एयर. ओके रजे. फोर्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑड वन ऑड गिविंग द रीजंस. जो हमें दिए हुए ना इनमें से ऑड वन मीनिंग जो अलग है उसे ऑड करना है विद रीजंस. फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, ईस्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन. अब इनसे ऑड क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन की गल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इधर ऑड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट होती है ना. सो ऑक्सीजन क्या है, ऑड वन है, बिकॉज ईस्ट रेस्पायर्स एनारोबिकली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्योंकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो किस में होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज ऑड वन. ओके रजे. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और रिब्स मूविंग अपवर्ड, डायफ्राम मूविंग डाउनवर्ड. इसमें हमारे पास ऑड वन क्या है, इनहेलेशन, बिकॉज ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स क्या है, मूव्स डाउन एंड डायफ्राम मूव्स अप. तो इसमें ऑड वन क्या था, इनहेलेशन. स्पाइकल्स, ट्रैकिया, कॉकरोच एंड अर्थवॉर्म. इनमें क्या ऑड है, जैसे अर्थवॉर्म, because in earthworm breathing occurs through the skin. There is no role of trachea and spiracles. Breathing in the earthworm occurs through the skin. So the odd one is earthworm. Okay. And the next two more questions. First question is, why do living organisms need energy and where does this energy come from? और जो एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो the energy is required to perform various functions. किस चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए, to perform various functions of life such as nutrition, excretion, growth, movement, transpiration and reproduction. Energy requires for the various functions. कौन कौन से फंक्शन, कुछ एग्जांपल्स दे ले, जैसे ग्रोथ, न्यूट्रिशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, और हम कह सकते हैं मूवमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कोई भी जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. ओके. वेयर फ्रॉम वी obtain this energy, we obtain energy or this energy comes from the breakdown of the food in the cells. This energy comes from the breakdown of the food. Okay Raze. So first question is done. Second question is breathing the same as the respiration? क्या breathing और respiration same process है? No, breathing is just a physical process of exchange of gases, but respiration is a chemical process in which breakdown of the food molecule takes place for the release of energy. Okay Raze. The third question is, why does an athlete breathe faster? Why does an athlete breathe faster after finishing a race? कोई एथलीट क्या है, फास्टर ब्रीथ क्यों कर रहा है आफ्टर फिनिशिंग अ रेस? फास्टर ब्रीथ क्यों कर रहा है, बिकॉज ड्यूरिंग रनिंग द एथलीट यूजेस लॉट्स ऑफ एनर्जी. बिकॉज ड्यूरिंग रनिंग, because during any type of exercise or running, the athlete uses a lot of energy, so the needs more, so
ही और शी, जो भी वो एथलीट था, he or she needs more energy to get more energy for the oxidation of the food, so to meet the demand of oxygen, athlete breathes faster. To meet the demand of oxygen, athlete breathes faster. Okay, Raze? So next is 3 mark questions. Differentiate between the respiration in animals and respiration in plants. Firstly, is the respiration in animals. Specific organs for the breathing are present in case of animals. Just एक्सपेक्शन, जो हम कहते हैं एक स्पेशल केसेस होते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस होती हैं हमारे पास, एक्सेप्शंस, तो वो क्या है इधर जो हमारे पास क्या है सिंपल ऑर्गेनिज्म है। और प्लांट्स के केस में क्या है नो स्पेसिफिक ऑर्गन, क्योंकि प्लांट्स लीफ से ब्रीथ कर लेते हैं, स्टेम से कर लेते हैं, रूट्स भी हेल्प कर रही हैं, तो देयर आर नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स प्रेजेंट। सेकेंड क्या है, इट अकर्स थ्रू द आउट ऑफ बॉडी क्वाइट डिपेंडेंट ऑन ईच एंड एवरी पार्ट। जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, एनिमल्स हैं, फिर उनमें क्या है जो रेस्पिरेशन है वो क्या है पूरी की पूरी बॉडी के थ्रू आउट हो रही है। Okay, throughout the full body, every part of the body plays role in the respiration. But in case of plants, each part respires independently of other parts. Meaning कि एक दूसरे पे डिपेंडिंग रहते वो इंडिपेंडेंटली रिस्पायर कर रहे हैं. But in case of animals, हर एक पार्ट क्या है दूसरे के थ्रू क्या है रिस्पायर कर रहा है. हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है थर्ड डिफरेंसेस आ गए. डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द डिफरेंट पार्ट्स. ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होगी. अगर हमारी बॉडी में लंग्स हैं तो लंग्स ही हेल्प कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स डिफरेंट नहीं है. तो प्लांट्स के केस में क्या होता है जैसे स्टेम में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, रूट्स में डिफरेंट प्रेजेंट है, स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट है. ठीक है, सो दे आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट पार्ट्स फॉर द रेस्पिरेशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. जैसे डायग्राम आप खुद ड्रॉ करोगे, बिल्कुल सिंपल आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है. ठीक है, दोनों साइड लंग्स और ट्रैकिया कैसे डिवाइड हो रहा है ब्रोंक्स में, और जो लंग की स्ट्रक्चर प्रॉपर बना के आपने क्या है पूरी की पूरी डायग्राम खुद से ड्रॉ करनी है. ओके, टू ऑलरेडी ड्रॉ दिस डायग्राम 2 times on rough notebook. Now you have to draw the well level diagram of the human respiratory system on your notebook. Okay रज़े, ये आपने खुद से करनी है ड्रॉ. एंड जिसके बाद हमारे पास कौन से क्वेश्चंस आ गए 5 मार्क क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस between the aerobic and anaerobic respiration. So if we talk about the similarities of aerobic and anaerobic respiration, so first similarity क्या है, in both the cases energy is released. एरोबिक के केस में भी और एनारोबिक के केस में भी, इन बोथ केसेस एनर्जी इज रिलीज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. तो कितनी सिमिलरिटीज होगी हमारे पास 2 होगी. दोनों केसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है और साथ में क्या है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है प्रोड्यूस हो रही है. तो डिफरेंसेस कौन कौन से हैं हमारे पास, डिफरेंसेस है एरोबिक के केस में क्या है हमारे पास, एरोबिक के केस में क्या है इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बट एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगी इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस क्या है रज़े, फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है इन दिस केस फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन. But in case of anaerobic respiration, food is partially broken down into alcohol and carbon dioxide. Okay, Raze? In case of aerobic respiration, more energy is produced. In case of aerobic respiration, more energy is produced. And in case of anaerobic respiration, less energy is produced. इस केस में क्या होगा less energy produce होगी. दोनों की हमने रिएक्शंस लिखी है, जनरल रिएक्शंस के फूड विद ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी. एनारोबिक के केस में क्या होगा देयर इज नो ऑक्सीजन, सो फूड ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. सो रज़े दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा. सो द सेकंड क्वेश्चन इज
डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। फर्स्ट हमने किसमें डिफरेंस बताने हैं, ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे ब्रीथिंग क्या होता है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, मैंने पहले ही बताया था, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट ब्रीथिंग क्या है हमारे पास, इट अकर्स आउटसाइड द सेल्स। ब्रीथिंग कहाँ पे होगी, आउटसाइड द सेल्स। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होगी, इट अकर्स इनसाइड द सेल्स। ओके रजे, in case of breathing no energy is released, but in case of cellular respiration energy is always released. नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या है, ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इन, हम हमारी बॉडी में कौन सी एयर लेके जाएंगे, ऑक्सीजन रिच एयर। एक्सहेलेशन में क्या होगा, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर क्या होगी, इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी। इस केस में रिब्स क्या होंगे, जब एयर को अंदर ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, रिब्स क्या होंगे, मूव्स अप एंड आउटवर्ड। तो जब एयर को हम क्या है गेट रिड कर रहे हैं हमारी बॉडी में से, तो क्या होगा, रिब्स क्या होंगे, डाउनवर्ड हो जाएंगे एंड इनवर्ड हो जाएंगे। और डायफ्राम क्या है, इनहेलेशन के केस में डाउन हो जाएगा और एक्सहेलेशन के केस में हमारे पास क्या है, अप हो जाएगा। एरोब्स एंड एनारोब में डिफरेंस बताना है मेरा से। एरोब्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स दैट रेस्पायर, एरोबिक मीनिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो द ऑर्गेनिजम्स दैट रेस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी कॉल देम एरोब्स। और एनारोब्स क्या होंगे, द ऑर्गेनिजम्स दैट रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके रजे, सो नेक्स्ट हमारे पास बुक वर्क आ गया रजे, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट क्या है, द मस्कुलर फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी इज कॉल्ड डायफ्राम। क्या बोलेंगे, डायफ्राम। द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड ट्रैकिया। what are the air tubes that present in insects, we call them trachea. Small openings on the sides of the body of an insect, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्प्राइकल्स, मीनिंग द स्मॉल ओपनिंग्स ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड स्प्राइकल्स। उसके बाद विंड पाइप इन ह्यूमंस इज ट्रैकिया। ओके, ह्यूमंस की विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, what are the tiny pores that are present on the surface of leaf, we call them stomata, we call them stomata. Okay Raze, these are the fill in the blanks. Next हमारे पास क्या आ गया, state whether the following statements are true or false, meaning you have to tell either statements are true or either statements are false. तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, complete breakdown of the food takes place during anaerobic respiration is true or false. Complete breakdown takes place during anaerobic respiration, no, we said partial breakdown, अभी किया था ना लॉन्ग क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट क्या हो गई, false. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट स्लोज और लो, अभी हमने क्वेश्चन किया था ब्रीथिंग रेट क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी ड्यूरिंग एनी हैवी एक्सरसाइज, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन कॉन्स्टिट्यूट्स वन ब्रीथ हियर. एक बार आप सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो तो उसे हम एक सांस पूरा बोलते हैं, वन ब्रीथ बोलते हैं. दिस इज ट्रू. Frogs breathe through the air, through their moist skin as well as lungs. Yes, frogs can also breathe through the skin and they can also breathe through the lungs. Okay, Razik. Fishes respire through the structure called trachea. No, fishes में कौन सी respiratory structure होती है, gills. So the statement is false. Next हमारे पास क्या आ जाएगा, the size of the chest cavity increases during inhalation. Yes, राइट, ट्रू, क्योंकि जब हमने सांस अंदर ले रहे हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है, मैचिंग्स है. कॉलम ए में हमारे पास स्किन गिवन है. स्किन के थ्रू कौन ब्रीथ करता है, अर्थवॉर्म. फ्रॉग किसके थ्रू ब्रीथ करता है, अभी हमने स्टडी किया, स्किन एंड लंग्स. ईस्ट कैसा होता है, एनारोब होता है. डायफ्राम क्या होता है, फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी, फिल इन द ब्लैंक्स में किया था. ओल्ड स्टेम्स क्या किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, लेंटिसल्स. विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया. लीव्स क्या होते हैं, स्टोमेटा. लीव्स में प्रेजेंट होते हैं ना, इसमें जो पोर्स होते हैं दैट आर द स्टोमेटा दैट हेल्प इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस. ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड स्पार्कल्स. ओके रजे, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ योर चैप्टर रेस्पिरेशन इन द ऑर्गेनिजम्स. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड full chapter with exercise. Okay Razi, thank you. If you face any problem you can tell me. Thank you beta.